हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। स्क्रीन बेटे अपीयर हो रही? जी सर, शो हो यस सर। रही है। आवाज भी सुनाई दे रही? जी बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है हेलो सर, बिल्कुल ठीक हेलो आवाज सुनाई दे रही है। स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन पेज पहला हेलो शो हो। हेलो सर। हेलो, आवाज बेटे सुनाई दे रही? सर यस सर, आवाज सुनाई दे रही है। आवाज आपकी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, स्क्रीन भी लेकिन अपीयर है हो रही? पेज पहला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला पेज है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये वाला पेज। In last lecture, the previous one, we were studying select statement, and we studied different aspects that we may use with the help of the select statement. We studied in a rigorous way the where clause. सर आपने जो But स्क्रीन we have शेयर की हुई है उसके अंदर वो नहीं आ रहा। क्या जो बेटे? आप जो पढ़ा रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। स्क्रीन तो शो हो रही है। एसक्यूएल वाली स्लाइड नहीं नजर आ रही है। अब शो हो रहा है? जी सर, अभी आई है। यस क्या सर, हो रहा बेटे? है शो। हो रहा है शो। Okay. Okay बेटे, we were studying basically data manipulation statements, and within the data manipulation statements we were studying the first statement, which is used for the data queries, and we have used where clause and with different operators that were basically your relational operators. Those were your logical operators, and we have to see how we can use where condition. Today we will study order by. The order by clause is used with the select statement. Order by means that is in terms of records that must be sorted, and the sorting may be in descending order or maybe in ascending order, and we have to let the select statement know on which attribute, that is your column, our all the records should be sorted. Order means when you give the order, this is basically some sort of hierarchy. If you say it may be an ascending order, the value of that column that appears in the rows as a result, every value of that column in the next coming rows should be greater than if you are in ascending order, or it is in lower value if this is in descending order. So it is implicit that the select statement, when it is used order by, it is it gives you results that is in ascending order. If you say my result should be in descending order, then you have to use the keyword that is DESC, descending. So in the syntax you have seen select column 1, column 2. These column 1, column 2, column 3 you can use for the projection, or you can use your wildcard, that is star. Then from, we are using from the table. Then we have to use order by. Then order by written column 1, column 2, column 3. At the end it is written ASC. ASC mean in ascending order or in descending order. Whichever the keyword you will use, your results should be shown in that manner. If you say ascending, should be shown in the ascending. If you say DESC, then those should be shown in the descending. However, order by is used to sort the records in ascending order by default.
By default, it sort your records in ascending order according to the column that you have written after the word, that is order by. And I say order by, after that say I say pay. Let's suppose select pay from table name order by, let's suppose pay. It means my contents of attribute pay, that is the column, should be output in the ascending order. So the value should be in ascending order. This is the syntax of the order by class. These are some examples. First is written Sir? select star from employee order by name. Just we have taken a table, its name is employee. A few records was entered into that. I have shown in the previous lecture. We are using the same table, and here you are saying that order by name. Order by name means that name is one of our attribute, and the name though starts with A, those should be first in the first row, B, C, D, in that manner. That should be sorted. The second example is select name pay from employee order by pay descending. In this example, we only showing as the result 2 columns, whereas in the first select statement we are displaying all the columns because we have used wildcard, that is star. So here only 2 columns appears. However, the pay attribute, the values of that column, they should appear in descending order. So you deliberately say order by pay and you have written DESC. It means this is descending order. The third one, select name pay from by. You are usually used to use select command up to from name pay descending, in which you are desiring that the name should appear in ascending order, whereas pay in descending order. For example, if we have records, 5 or 6 records, and the name start with A, those should be sorted in ascending order, yeah, and the values corresponding to those names, those should be in descending order. Okay, but it does not violate that the pay should be from other persons and the name should be from other person. No, it can't be. Did you get my point? Hello? Hello? Yes, sir. Did you get my point? If you are using 2 attributes order by, Yes, sir. it never happened that Yes, your sir. names are in ascending order and pay is in descending order and corresponding values have been changed. No, it's not like that. No. Every name has its own pay. However, they should be arranged in a manner that the pay should be in descending order, whereas name should be in ascending order. Okay. On Friday, we have to do its exercises. Then it should be more clear to you when you are using, or you may use these commands at your home, that you have downloaded your SQL server and run these commands and have to see what should be the output. Now we have to discuss select queries order by. Any question about that? सर उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया करे सर. अच्छा बेटे, ये बेटे ऑर्डर बाई से जो हमने क्या कहा है कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे. दूसरा हमने ये कहा कि जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ये क्लास यूज करेंगे ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई के बाद आप अपने उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके मुताबिक आप ये चाहते हैं कि मेरे रिकॉर्ड सॉर्ट हों, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है. आप ये चाहते हैं कि ये सॉर्ट हो डिसेंडिंग ऑर्डर में,
तो आपने उस कॉलम के साथ जो लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखने के बाद आपने ये रिजर्व वर्ड लिख देना है, DESC, डिसेंडिंग का जो पहले ये है, ये लिख देंगे तो वही डिफ़ॉल्ट असेंडिंग नहीं यूज़ करेगा, वो उस कॉलम के तहत जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे टोटल रोज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा। क्लियर बेटे? यस सर। ये एग्जांपल थी इसकी। आज हम बेटे इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वी हैव टू यूज एग्रीगेट फंक्शंस। ये जो आपकी सीक्वल है ये आपको एग्रीगेट फंक्शन जो है वो हेल्प करती है, तो वो हम इसमें बताएंगे आपको कि एग्रीगेट फंक्शन आप कब यूज कर सकते हैं। There are 5 aggregate functions that you may use. One is count, returns the number of values in a specified column. ये रिकॉर्ड्स को काउंट कर देता है कि वो जो अगर आप कंडीशन के साथ देंगे तो कंडीशनली काउंट कर देगा। बस ये नंबर ऑफ रोज को काउंट कर देता है, रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम। उस कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उतनी है जितने उसके रिकॉर्ड्स है। फिर दूसरा है सम, रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम। कोई भी अगर कॉलम है उसको नाम आपने उसका लिखा है तो उसमें जो वैल्यूज हैं अगर वो इंटेग्रल वैल्यूज हैं तो उनको ये सम कर देगा। इसका मतलब आप इसमें डेसिमल, इंटीजर, वो आप चीज़ें यूज़ करेंगे जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो। इसी तरह ही किसी भी कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं अगर आप उसकी एवरेज लेना चाहते हैं तो आप AVG के नाम से अपना ये फंक्शन यूज़ करेंगे, तो वो उस कॉलम के वैल्यूज़ को लेके सम अप करके और नंबर ऑफ काउंट से उसको तकसीम करके आपको एवरेज दे देगा। अगर आपको कोई बंदा ये कहे बेटे कि आपके पास एवरेज का फंक्शन नहीं है, तो क्या जो पहले 2 फंक्शन है इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं? जी सर। कोई बच्चा क्लास में बताए कि आप काउंट से नंबर ऑफ रोज काउंट कर सकते हैं, सम से उसकी वैल्यू काउंट कर सकते हैं, क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये आपसे हम आपसे करवाएंगे कि अगर एवरेज फंक्शन ना हो तो क्या होना चाहिए। उसके हो बाद सकता है द सर। नेक्स्ट इज मिन फंक्शन, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड कॉलम। उस कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है ये उसको बता देता है। मैक्सिमम रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड कॉलम, किसी कॉलम में जो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू है ये उसको बता देता है। लेकिन इसके साथ बेटे कुछ चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक सेम में आपने चीज़ रखनी है कि जब आप वेयर क्लास यूज़ करें तो वेयर के बाद आप बेटे कंडीशन लगाते हैं ना बेटे, तो वेयर क्लास जी जो है सर। उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हुए सोचें क्या मैं इसको इधर यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है बेटे? Apart from the count, each function eliminates null first and operate only on the remaining non-null values. कहता है जो काउंट है वो तो अगर उस कॉलम में नल्स भी हैं वैल्यूज तो उनको भी काउंट करता है, क्योंकि उसने तो नंबर ऑफ रोज काउंट करनी होती हैं। लेकिन जो बाकी आपके फंक्शन है वो जब एग्जीक्यूट होते हैं तो वो पहले नल वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी आपके पास रोज बचती हैं उसकी आपको एवरेज निकाल के देंगे या सम निकाल के देंगे या मिनिमम वैल्यू निकाल के देंगे या मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देंगे। ये जो आपकी लाइन लिखी हुई है इन येलो, अपार्ट फ्रॉम काउंट, इसके अलावा जो काउंट फंक्शन के अलावा जितने भी ईच फंक्शन एलिमिनेट्स नल्स फर्स्ट, वो पहले फर्स्ट को इग्नोर करता है और उसके बाद जो बाकी आपके पास रोज बचती हैं उस पर वो ऑपरेट होते हैं नॉन नल पे। काउंट क्या करता है, ऑल द रोज ऑफ ए टेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर नल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज अकर। ठीक है बेटे? एक चीज मुझे आप बताएंगे कि अगर आप किसी भी सिलेक्ट कमांड में आप कहते हैं कि मेरी डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो कंसिडर ना हो तो आप उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? कोई बच्चा बताए। आपकी बेटे सिलेक्ट कमांड की जो सिंटेक्स है उसमें जहां से वो शुरू होती है सिंटेक्स, उसमें पहले ही बताया हुआ है एक डिस्टिंक्ट लफ्ज यूज करते हैं, एक ऑल यूज करते हैं। याद आया कुछ? तो जब आप डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं जो रिजर्व वर्ड है तो वो फिर डुप्लीकेट जो है उसको इग्नोर करता है, वो डुप्लीकेट नहीं आने देता उसमें। ये चीजें आप याद रखा करें भी।
स्क्रीन आपके अपीयर है बेटे? यस सर। जी सर। आवाज भी आ रही है? यस। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर रेज करें बेटे। अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बेटे इसकी ली हैं। तो सिंटेक्स ऑफ काउंट क्या है? पहला ही हमने लिखा है कि सिलेक्ट काउंट और इसमें कॉलम नेम लिख दें फ्रॉम टेबल नेम। वेयर कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप वेयर कंडीशन लगाते हैं तो वेयर कंडीशन का मकसद क्या होता है कि जो भी आपने कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक जितने भी आपके रिकॉर्ड्स उस टेबल में होते हैं वो उसको उसके मुताबिक फिल्टर कर देती है। क्या बेटे कर देती है? फिल्टर कर देती है। अगर मैं कहूँगा वेयर कंडीशन पे ग्रेटर देन सच अमाउंट तो सिर्फ वो उसी में वही रिकॉर्ड लेगा जिसमें उनकी जो पे है वो उस वैल्यू से बड़ी होगी। तो अगर आप सिर्फ यही लिख देते हैं कि सिलेक्ट काउंट स्टार उसके अंडर डाल के फ्रॉम टेबल तो वो सारी रोज को काउंट कर लेगा। अगर आप ये लिखते हैं कि ये काउंट करे वेयर कंडीशन तो वो जो कंडीशन को मीट करती होंगी उसकी नंबर ऑफ रोज आपको बताएगा, टोटल टेबल की नहीं बताएगा वो। फर्दर सिंटेक्स ऑफ एवरेज लिखा हुआ है। सिलेक्ट एवरेज, जिस कॉलम की एवरेज लेनी है उस कॉलम का नाम लिखेंगे आप, फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन लगा देंगे अगर वेयर के साथ यूज करना चाहते हैं। अगर आप वेयर कंडीशन के साथ यूज नहीं करना चाहते, विदाउट वेयर यूज करते हो, तो वो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसमें जिस कॉलम को आपने कहा है उसकी वो एवरेज कैलकुलेट कर देगा। फर्दर सम है, सम पे भी वही है, उसकी सिंटेक्स जो जैसे एवरेज की है, जस्ट यू हैव टू राइट द कीवर्ड सम। एक चीज बेटे इसमें आप देखेंगे कि सम एंड एवरेज मे बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक फील्ड्स। समझ आई बेटे? कि जब आप एवरेज निकालते हैं, ठीक बात बेटे, और आप अपना सम निकालते हैं तो जाहिर है वो जो है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज पे होता है। तो आप न्यूमेरिक वैल्यूज को जब भी सम यूज करें फंक्शन या एवरेज यूज करें तो आप उन कॉलम्स पे करें जिनको आपने अपने स्ट्रक्चर में, टेबल की स्ट्रक्चर में यू हैव डिफाइंड इट एज ए डेसिमल या डिफाइंड एज एन इंटीजर, स्मॉल इंटीजर्स, जो आपने उसे डेटा को करने के लिए आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं, तो उनमें से आपने वो टाइप इसमें यूज़ करनी है जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं। फर्दर इट रिफ्लेक्ट्स कि जब ये एवरेज और सम कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी, एलिमिनेट्स नल एंड ऑपरेट ऑन द नॉन नल वैल्यूज। अगर हमारे उस कॉलम में कुछ नल वैल्यूज हैं, कुछ रिकॉर्ड्स के लिए वो नल हैं, तो वो नल को पहले इग्नोर कर देगा। जो बाकी आपकी रोज बचेंगी जो नॉट नल हैं उन्हीं को काउंट करेगा, उन्हीं की एवरेज निकालेगा। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। जी सर। उसके बाद बेटे है आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, ये वाला। अब मिनिमम में बेटे हमने ये कहा है कि ये मिनिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम में कहा है उसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसके साथ जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन यूज मिन एंड मैक्स फंक्शंस, ये न्यूमेरिक आपका वो वाला कॉलम हो या नॉन न्यूमेरिक हो, ये दोनों सूरतों में आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? एलिमिनेट्स नल एंड ऑपरेट ऑन नॉन नल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट हैज नो इफेक्ट विद मिनिमम एंड मैक्सिमम। डिस्टिंक्ट बेटे हम क्यों यूज करते थे? टू अवॉइड डुप्लीकेट। तो कहता आप इसमें लिख भी दें, अगर सेलेक्ट और फिर लिखे डिस्टिंक्ट, फिर लिखे मिनिमम, कॉलम का नाम लिख दें फ्रॉम टेबल, तो वो उस डिस्टिंक्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लिखें या ना लिखें, वो सारे ही जो आपके रिकॉर्ड्स है उन्हीं में से मिनिमम आपको ढूंढ के देगा, उसी में से आपको मैक्सिमम ढूंढ के देगा। सो द सिंटेक्स में लिखा है कि सिलेक्ट और मिनिमम आपने रिजर्व वर्ड यूज किया, और उसके बाद जिस 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 कॉलम नेम का, जो कॉलम आप जिसका मिनिमम निकालना चाहते हैं आप उसका लिखते हैं कि ये वो मिनिमम निकालना है, इसका मैक्सिमम निकालना है। अगर बेटे आप कंडीशन के साथ इसे लिखाते हैं, वेयर क्लास के साथ, तो ये हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैंने तो मिनिमम जो है वो ऐसे रिकॉर्ड्स का निकालना है जिसमें जो नेम है उस एम्प्लॉयज़ के
वो एस से शुरू हों लेट सपोज, तो वो इसको फिल्टर जब करता है तो वेयर क्लास के साथ फिल्टर करता है, और फिर उस जो बाकी फिल्टर के बाद जो बचेंगे आपके रिकॉर्ड्स, उनका मिनिमम या मैक्सिमम आपको देगा। ये आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। फिर वो जब वेयर क्लास यूज़ करते हैं तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को नहीं लेता, क्योंकि ये इसको फिल्टर करता है। क्लियर बेटे? यस सर। An aggregate function can be used only in the select list in the having clause। ये बेटे मैं अभी आपको करवानी है हैविंग क्लास, लेकिन ये पहले मैंने एक बता दिया है कि अगर आपने यूज़ करना हो, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने हो और सेलेक्ट में यूज़ करने हो एंड इन द हैविंग क्लास यूज़ करने हो, इट्स यूज इज इनकरेक्ट एल्सवेयर। वो कहता है जब भी आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने हैं तो आप या तो उसे सेलेक्ट क्लास के साथ यूज़ कर लेंगे बेटे, और या किस क्लास के साथ करेंगे? हैविंग क्लास के साथ। समझ आ रही बेटे? सर हैविंग क्लास के बारे में बता दें। क्या बेटे? देखो ना बेटे, सपोज करो अभी आपने एक अपना अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा और उसके साथ आपने वेयर क्लास पढ़ी है ना, वेयर क्लास। यस सर। इसी के साथ ऑर्डर बाय क्लास है, इसी के साथ हैविंग क्लास है, इसी के साथ ग्रुप बाय क्लास है जो हमने अभी पढ़नी है। तो उसने ये कहा कि जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं जब भी आप इसे सिलेक्ट लिस्ट में ये यूज होते हैं, ठीक है बेटे, तो आप सिलेक्ट में यूज उसे करें, ऐसा नहीं कि नहीं करें, लेकिन आप जो दूसरे आपकी क्लासेस हैं उनके साथ ना यूज करें। आप इसे यूज कर सकते हैं इन द सिलेक्ट लिस्ट एंड इन द हैविंग क्लास। हैविंग क्लास के साथ आप ये यूज कर लेंगे। अगर आपको कोई बंदा कहे कि वेयर क्लास के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकेंगे, तो आपका फिर आंसर रिप्लाई क्या होगा बेटे? नो। आप रिप्लाई होगा कि वेयर क्लास के साथ हम ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सम, और उसके अंदर जो ब्रैकेटों में लिखना है वो आपने कॉलम नंबर पे लिख दिया, सम पे ग्रेटर देन इतने 1000। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने एग्रीगेट फंक्शन को जो सम था उसे जब कंडीशन बनाने लगा तो वेयर के साथ यूज करा दिया। ऐसे ही है ना बेटे? यस सर। तो आपके रूल के तहत जो है वो ये है कि ये उसके साथ यूज नहीं हो सकता। तो कोई भी एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, ये वेयर के क्लास, वेयर जो है क्लास उसके साथ यूज नहीं होता। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है जिसमें हमने इसमें यूज कराना हो कुछ चीज सम करके, एवरेज करके, तो फिर बेटे हम सब क्यूरीज लिखते हैं। वो मैं आपको पढ़ाना है अभी कि एक सिलेक्ट जो है स्टेटमेंट, फिर उसके वेयर के साथ हम एक और उसके सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। पहले वो सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑपरेट होती है, फिर जो उसका आंसर निकलता है वो वेयर कंडीशन के साथ उसको मैच कराते हैं। उस सूरत में हम इस तरह की चीज़ों को उधर डील कर लेते हैं। लेकिन वेयर क्लास के साथ आपने ये एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करने। इनका रूल ये कहता है कि एग्रीगेट फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट एंड इन द हैविंग क्लास। ठीक हो गया बेटे? अब इसका बेटे ये पहली एग्जांपल दी हुई है, सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी आप देखें कि एवरेज हमारा एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन हमने यूज किया है उसका जो पैरामीटर हमने दिया हुआ है वो एक कॉलम का नाम है जो पे है, और फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटे? फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप ये कहें कि जो पहला हमारा रूल है ये वायलेट नहीं हुआ। हम कहते हैं कि आपके एग्रीगेट फंक्शन सिलेक्ट लिस्ट में यूज हो सकते हैं, और जो आपकी सिलेक्ट लिस्ट है वो सिलेक्ट वर्ड जो आपका कीवर्ड होता है उसके बाद जितने भी आप कॉलम नेम देते हैं या कोई आप अपना एक्सप्रेशन दे देते हैं या कोई फंक्शन दे देते हैं, उसको हम सिलेक्ट लिस्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे? जी सर। यस सर। जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब अगर हम सिलेक्ट के साथ, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ सिलेक्ट सम ब्रैकेट ओपन पे ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो फिर सम किसका निकाल के देगा बेटे? सारे ही पे का। रोज में जो कॉलम आपका पे होगा उसका एग्रीगेट आपको सम निकाल के दे देगा। अगर मैं इसके साथ बेटे वेयर कंडीशन लगा दूं, मैं लिखूं सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जो उसका नेम है ये इक्वल असद,
तो फिर वो बेटे क्या करेगा, वो जो आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं उसको फिल्टर करके ऐसा लेगा जिनमें नेम असद है और उनकी एवरेज पे आपको देगा। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटे देखें सिलेक्ट काउंट एज यस माई। सर। ये बेटे मैंने आपको पहले बताया था कि एज रिजर्व वर्ड आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप ये चाहते हैं कि जो मेरी हेडिंग है, जो जब आपका डिस्प्ले होता है, आपके रिजल्ट आउटकम डिस्प्ले होती है आपकी, तो उसमें जो पहली आपकी रो आती है वो हेडिंग्स होते हैं। तो आप कहते हैं जो हेडिंग का नाम है ना वो चेंज होके आए, तो आपने लिख दिया सिलेक्ट काउंट स्टार। ये सारे ही रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा जो उसमें है, और किस में है, एम्प्लॉय टेबल में। कौन कौन से करेगा, जिसमें पे जो है वो ग्रेटर देन 3500 है, और जब इसको डिस्प्ले करेगा तो लिखेगा माई काउंट, क्योंकि आपने कहा कि ये जो इसका रिजल्ट है उसका जो कैप्शन है वो माई काउंट हो। तो हम पहले भी करते हैं, सपोज करो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम एज स्टूडेंट्स नेम, तो वो जो कॉलम होगा उस पे कॉलम की हेडिंग नेम नहीं होगी, वो एज के बाद जो आपने लिखा है वो स्टूडेंट नेम होगी। ये आपने प्रैक्टिस करके देखा है ना बेटे, या नहीं देखा अभी? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगेन सेलेक्ट सम पे एज माई सम पे फ्रॉम स्टाफ। अगर कोई स्टाफ आपका टेबल है उसमें से आप कहते हैं वो पे निकालें, उसका सम मुझे निकाल के दें, तो आपने उस जो सम निकाला है उसको जो कैप्शन दिया हुआ वो लिखा हुआ है माई सम पे। यहां तक क्लियर है बेटे? हेलो? यस सर। आपने जो रिस्ट्रिक्शन आप पे है वो यस क्या है कि आपने अपना जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनको या तो सेलेक्ट की लिस्ट में लिखना है या आपने हैविंग क्लास के साथ लिखना है, जो अभी हमने पढ़नी है। बाकी जितने भी ये एग्रीगेट फंक्शन है किसी और क्लास के साथ हमने नहीं लिखने। सपोज करो आप कहते हैं कि ऑर्डर बाई क्लास है उसके साथ मैं लिख सकता हूँ, ऑर्डर बाई सम नहीं, आप उसको इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटे? तो ये आपने जब भी इसको यूज करना है अपने ये एग्रीगेट फंक्शंस को, तो इसमें जो लिमिटेशंस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको अपने ज़हन में बेटे जरूर रखना है। क्लियर? यस सर। अब बेटे ये एक और एग्जांपल है जो मिनिमम की है। अब हमने ये पहले आपको स्टडी कराया है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फंक्शंस हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे भी हो सकते हैं, ये नॉन न्यूमेरिक पे भी हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो आपके फंक्शंस हैं, जो एवरेज है और जो आपका है सम है, उसको हमेशा आपने, ये बेटे साउंड आ रही कोई इस बैकग्राउंड पे, इसको बेटे ऑफ कर ले। ये प्लीज अपना माइक बेटे ऑफ कर ले। तो बेटे हमने ये देखा है कि जो हमारा मिनिमम वाला फंक्शन है और मैक्सिमम वाला फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन जो हैं ये हम यूज कर सकते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा पे भी और आपके न्यूमेरिक डाटा पे भी। अभी इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट मिन पे एज मिनी पे फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से जो मिनिमम है वो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। इसी तरह अगर आप मैक्स लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। ठीक है बेटे? अगर आपका जो वैल्यूज हैं उसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक हैं जो कि करेक्टर की सूरत में होती हैं, तो वो जो आस्की की वैल्यू होती है, आस्की की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो किसी भी सिंबल को उन्होंने दी होती है, उसके मुताबिक वो ना उसको डील कर लेता है, वो मिनिमम भी निकाल देता है, मैक्सिमम भी निकाल देता है। फर्दर मोर एक और ये सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें मिन को भी यूज किया गया हुआ, मैक्सिमम को भी यूज किया गया है और आपकी एवरेज को भी यूज किया गया है। तो इसका मतलब है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप एक से ज्यादा जो आपके फंक्शंस हैं उसकी लिस्ट में लिख सकते हैं। यू हैव रिटन सेलेक्ट मिनिमम पे आ गई एज पी मिन, मैक्सिमम पे एज पी मैक्स और एवरेज पे एज पी एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या आप बेटे ये जो मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी है इसको वेयर क्लास के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं आप? बताएं बेटे।
अगर आप Yes, ये sir. कहते हैं, हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ये वाले जितनी भी मेरी एवरेज और मैक्सिमम पे और मिनिमम पे निकाले, एम्प्लॉय से निकाले, लेकिन इसके साथ कोई कंडीशन लगा देते हैं कि ये जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उस पर हमने कोई कंडीशन लगा दी, और आप पहले भी ये यूज़ करते रहे, मैंने आपको कुछ फंक्शन सॉरी वो करवाई थी यूज़, वाइल्ड कार्ड यूज़ कराए थे, तो आप सपोज करो वहाँ पे लिख देते हैं वेयर नेम इक्वल, और कोटेशन में ए लिखने के बाद 3 जो है ना अंडरस्कोर डाल देते हैं और सेमीकोलन डाल के इसको एंटर करते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा कि ये आपकी मिनिमम पे, आपकी मैक्सिमम पे, आपकी एवरेज पे, एम्प्लॉय टेबल से वो उसको कैलकुलेट करे, कैलकुलेट करके हमें बताए, लेकिन किन रिकॉर्ड्स के लिए, ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए जिनमें नाम जो है वो ए से ही शुरू होता है, लेकिन उसके जो बाकी 3 कैरेक्टर हैं वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेंथ उसकी नाम की 4 ही होगी, क्योंकि हमने वहां पे 3 अंडरस्कोर दिए हुए हैं और एक। बट आपकी आवाज काट रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप देखें, आप सुन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। नहीं यार, नहीं बेटे किसी का ये माइक किसका ऑन है, ये मुझे बताएं जरा, ये मैं देख सकता हूँ यार कि मेरा मैंने यार तब नहीं पता यार, मेरा माइक यार शादी। ये माइक किसका है अभी, ये कौन बंदा है? है भाई यार। अच्छा बेटे, हेलो, यस सर। जी सर, जी सर। आवाज आ रही बेटे? ये कोई आउटसाइडर है, ये कोई लिखा हुआ 333, ये क्या लिखा हुआ है? पता नहीं सर। यस सर, कोई आउटसाइडर ही है। अब देखिए बेटे, इस कम्युनिटी का क्या कर सकते हैं आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये हमारी कम्युनिटी जो है, इसकी एजुकेशन इस तरह हुई है कि हम अपना सेशन कर रहे हैं, और एक जो बरखुरदार है, अल्लाह ताला की ज़ात उसे हिदायत दे, इससे ज़्यादा तो नहीं हम कह सकते। और ये एक चीज़ आपने मुझे बताई नहीं, इसमें ये इसके स्पेलिंग जो ना गलत लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना? हमने टेबल के स्पेलिंग जो है दोज आर रॉन्ग। जी बेटे, तो ये बेटे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इनकी आपको समझ आई बेटे? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो हमारा रूल है बेटे, हमने ये कहा कि सिलेक्ट लिस्ट में आप अपने एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, और दूसरा हमने कौन सी क्लास आपको बताई जिसमें यूज कर सकते हो? हैविंग क्लास के साथ। बाकी जो आपकी क्लासेस हैं उसके साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते। कई दफ़ा हम इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जब बच्चे इंटरव्यू देते हैं उसमें सीक्वल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वेयर क्लास के साथ क्या आप अपने एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लेते हैं? उनसे हम ये भी सवाल कर लेते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉयज़ की पे है, तो मैं कहता हूँ कि उसमें मुझे काउंट करके बताओ इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो पे है सम पे से या एवरेज पे से ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन बेटे समझ लिया? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ की, उसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं, और क्वेश्चन हमारा ये है कि उसमें से हमें ऐसे जो काउंट करके बताओ एम्प्लॉयज़ अपने पीछे से कुक्कड़ बंद कर दें। तो बेटे मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि हमारे पास एक म्यूट कर लूंगा, आप बार बार म्यूट करें, मैं फिर अनम्यूट करूंगा। बेटे मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करूं, इसको जरा समझा दूं। बेटे ऐसा नहीं करते, हमारा सेशन हो रहा है और आप इसमें
हमें इंटरप्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती बेटे। तो बेटे हम ये कह रहे थे कि जब भी आप, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके एक एम्प्लॉयज की टेबल है, उसमें 100 आपने रिकॉर्ड्स हैं। बाहर मैं नहीं कहता आना। हूँ कि हेलो, आवाज आ रही बेटे? यस सर। बंदा इस बरखुरदार को क्या कह सकता है? मैं तो, मेरी तो आदत बड़ी और तरह की सॉफ्ट सी है, और मुझे अच्छा नहीं लगा अगर ये इस तरह इंटरप्ट कर रहे हैं, बुरी बात है, हम तो यही कह सकते हैं। तो बेटे ये ऐसे है कि एक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें 100 के करीब रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉयज़ के, और मैं उसमें कहता हूँ कि मुझे ऐसे काउंट करके दो, एम्प्लॉय ऐसे काउंट करके दो जिनकी जो पे है वो एवरेज पे से ज़्यादा है। तो आपके ज़हन में फ़ौरन आएगा कि इसमें तो पहले एवरेज पे काउंट होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद हमें इसे काउंट करना चाहिए था कि एवरेज पे से कितने ज़्यादा हैं। तो अगर आप उसमें लिख देंगे कि एवरेज पे ग्रेटर देन दिस वन या लेस देन दिस वन, तो वो बेटे आपकी क्वेरी गलत होगी, क्योंकि आप एक एग्रीगेट फंक्शन को किसके साथ यूज़ कर रहे हैं बेटे? वेयर क्लास के साथ। वेयर क्लास क्लियर है के बेटे? साथ। हाँ, तो आपने वेयर क्लास के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करने, या तो हमने सिलेक्ट लिस्ट में करने हैं और या आपकी हैविंग क्लास के साथ करने। क्लियर बेटे? यस सर। दूसरा है बेटे को हम जो क्वेरीज हैं ये हम ग्रुप बाय के साथ करते हैं, ये भी हमारी एक क्लास है। जो ग्रुप बाय क्लास है बेटे, ये बेसिकली हम यूज करते हैं सब टोटल्स के लिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर रहे थे ना बेटे, वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं या तो वो उनको लेते हैं या वेयर कंडीशन के साथ ले लेते हैं। अगर वो वेयर कंडीशन के साथ भी उन रिकॉर्ड्स को लेते हैं तो फिल्टर होके जितनी वेयर क्लास के साथ हमारे रिकॉर्ड्स आएंगे वो उन्हीं की सम निकाल देगा, उसी की एवरेज निकाल देगा। ठीक है बेटे? तो अब हम ये चाहते हैं कि कभी कभी हमें जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें हमें सब टोटल चाहिए होते हैं, और आखिर में उसका एक ग्रैंड टोटल चाहिए होता है। तो अगर आप उसमें चाहते हैं कि हमारे सब टोटल्स हों और एक ग्रुप का सब टोटल आ जाए, फिर दूसरे ग्रुप का सब टोटल आ जाए, फिर तीसरे ग्रुप का सब टोटल आ जाए। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका, हर एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है बेटे? अब वो जो उनके डिपार्टमेंट हैं, तो हम डिपार्टमेंट के हिसाब से उनकी जो पे मिल रही उन्हें उसके एग्रीगेट देखना चाहते हैं, ओवरऑल नहीं देखना चाहते। तो क्या आप ये सोचेंगे कि इनका ग्रुप बनने चाहिए? बताएं बेटे। यस सर। हाँ, अगर कंप्यूटर साइंसेज के एम्प्लॉय हैं उनका एक ग्रुप बन जाए, और जो मैनेजमेंट साइंसेज के उनका एक ग्रुप बन जाए, और हर एक की अपनी एवरेज पे या सम निकल आए, और आखिर में इनका ग्रैंड टोटल अगर हमने निकालना हो तो फिर हम ग्रैंड टोटल भी इसका निकाल सकते हैं। तो वो जो बेटे ग्रुपिंग है ना बेटे, अब मुझे बताओ कि अगर ये जो आपके रिकॉर्ड हैं वो सॉर्टेड नहीं है, तो क्या ये ग्रुपिंग उसकी कर लेगा? क्योंकि इसने तो उन ग्रुप को लेना है जिनके एक जैसी वैल्यूज हैं किसी भी कॉलम में जिसको हमने ऑर्डर कर लेना है। तो जब उनकी एक जैसी वैल्यू होंगी तो उनको ये एक ग्रुप में शामिल कर लेगा। तो ग्रुप क्लास जो है ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूजफुल टू हैव सब टोटल्स इन रिपोर्ट्स। ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रो। तो जब उसकी समरी रो का मतलब है कि वो सब टोटल वाली रो आएगी, उस रो में बेटे वो उन्हीं का ग्रुप बनाएगा जिनकी उन सारे रिकॉर्ड्स में सेम वैल्यू हो। जिसमें हमने जैसे कहा वो कंप्यूटर साइंसेज के एम्प्लॉय हैं, तो कंप्यूटर साइंसेज के एम्प्लॉय का एक ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बना के उनका कोई सब टोटल हमें बना देगा। उसकी जो बेटे सिंटेक्स है वो ये है कि सिलेक्ट ये कॉलम नेम जो भी आपको चाहिए,
तो जब हम कॉलम नेम्स लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें प्रोजेक्शन अपनी यूज कर सकते हो या आप अपना वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। फ्रॉम टेबल यहाँ तक आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते रहो। फिर उसके बाद वेयर कंडीशन लगा सकते हैं आप। वेयर कंडीशन के बाद बेटे आपने इसमें लगाया ग्रुप बाय कि लेकिन आपने उनको ग्रुप करना है। जब ग्रुप करना है तो ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर के तहत उनको आपने ग्रुप करना है। ठीक है बेटे, ये इसकी टोटल सिंटेक्स है। और ग्रुप बाय क्लास हम यूज करते हैं फॉर आवर सब टोटल्स। ये इसकी जो एग्जांपल्स है बेटे, ये हमने जुमा के रोज इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लें और अपने को टेबल बना के रखना। आप कोई क्रिएट कर लें टेबल, और जो सा किसी बच्चे का टेबल होगा उसी पे हम उसको ऑपरेट करवा देंगे। पहले तो ऐसा करेंगे, कॉमन टेबल बना के आपको दिखा के, और हम जो है बना के तो ये कमांड्स हम आपको बता देंगे। फिर आपने जो अपने अपने टेबल बनाए होंगे उस पर आप अपनी ये एक्सरसाइज करेंगे। और वेयर क्लास के साथ जितनी भी हम ये दूसरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट के साथ वेयर क्लास पढ़ी हमने ये ऑर्डर वाली पढ़ी है, ग्रुप बाई पढ़ी है, इसको सबको हम उस पर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो। अब ये जो बेटे ग्रुप बाई क्लास है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो पहले मैंने आपको ये बात बताई कि ग्रुप बाई क्लास जो है, जब हम अपनी को रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं उसमें हम सब टोटल अगर हमें चाहिए होते हैं तो हम उसको सब टोटल उसमें बेटे इसके निकालने के लिए हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं और फिर हम ग्रुप बाई यूज़ करते हैं। ग्रुप बाई स्टेटमेंट जो है, ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रो। तो जो भी सब टोटल की आएगी बेटे, ये फिर उसी की आएगी जिनकी जिस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो सेम वैल्यूज हैं, उनका ये ग्रुप बनाएगा और फिर आपको समराइज करके उसको दे देगा। ए क्वेरी दैट इंक्लूड्स ग्रुप बाई क्लास इज कॉल्ड ग्रुप क्वेरी। किसी भी क्वेरी में जो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ बेटे करते हैं, अगर हम उसमें अपनी ग्रुप क्लास को यूज कर लेते हैं तो हम उस क्वेरी को ग्रुप क्वेरी कह देते हैं। फर्दर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन ग्रुप बाई क्लास इज यूज्ड, ईच आइटम इन द सेलेक्ट लिस्ट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। वो मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई मेरे बात बेटे? पहली बात यह है कि आप ग्रुप बाई क्लास किसके लिए यूज करेंगे? फॉर सब टोटल्स। दूसरा आप किस लिए करेंगे कि जब भी आप किसी कॉलम पे वो अपनी ग्रुप बाई क्लास यूज करते हो तो वो जो कॉलम है उसमें जो सेम वैल्यूज हैं उनका वो आपस में ग्रुप बनाएगा। थर्ड, हमने ये कहा है कि जो अगर आप किसी क्वेरी में ग्रुप बाई क्लास यूज कर लेते हो तो हम उसको ग्रुप क्वेरी भी कह देते हैं। तो लास्ट वन उसमें है कि व्हेन ग्रुप बाई इज यूज्ड, ईच आइटम इन द सेलेक्ट लिस्ट, जो सेलेक्ट लिस्ट के साथ आपने आइटम लिखी हैं वो रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटे? फर्दर बेटे जो इसमें है, जो हमारी कॉन्स्टेंट हैं जिनको हमने मद्देनजर रखते हुए इसको यूज करना है। व्हेन द वेयर क्लास इज यूज विद द ग्रुप बाई, पहले दिन जब हमने सेलेक्ट कमांड की बेटे वो देखी थी सिंटेक्स, तो मैंने आपसे एक स्लाइड शेयर की थी, दैट वाज रिगार्डिंग कि जिस तरह पे हमने ये आवाज लिखी काट हुई दिया है। सर आपकी। जी बेटे, हेलो, आवाज आ रही बेटे? यस सर, आवाज कट के आ रही है। हट के आ रही बेटे? हो सकता है ये कोई कम्युनिकेशन का हो मसला। आपको मैं क्या रिकॉल करें, आपके एक हमने स्लाइड पढ़ी थी जिसमें हमने वेयर क्लास की जो सिंटेक्स है उसको देखा था और उसके साथ ये सारी क्लासेस लिखी हुई थी। वेयर क्लास भी लिखी हुई थी, ऑर्डर बाय भी लिखी हुई थी, हैविंग भी लिखी हुई थी, याद करें आप। और उसमें हमने एक स्टेटमेंट उसकी पढ़ी थी कि जिस ऑर्डर में ये हमने अब सिंटेक्स में लिखी हुई हैं इसी ऑर्डर में ये ऑपरेट होनी चाहिए। तो अगर हम उसको उस ऑर्डर में ऑपरेट नहीं करते तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने सिलेक्ट के फौरन बाद वेयर क्लास को यूज़ करना है और मैं वेयर को बाद में यूज़ करता हूँ और ग्रुप बाई को पहले कर देता हूँ तो वो रॉन्ग है। इसमें है कि व्हेन द वेयर क्लास इज यूज्ड विद ग्रुप बाई,
द वेयर क्लॉज इज अप्लाइड फर्स्ट। समझ आई बेटे, याद आया कुछ? हमने उसका ऑर्डर जो है ना वो देखा था Yes, कि sir. इस ऑर्डर में हम कर सकते हैं, हमने उसी ऑर्डर में लेना है। उसने वैसे आपको ये कॉल कराया है कि अगर आप वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं और उसमें ग्रुप बाय भी यूज करते हैं, वेयर तो कंडीशन है वो फिल्टर करता है और जो ग्रुप बाय है वो उसके ग्रुप्स बनाता है। एक और चीज बेटे मैंने आपसे शेयर की थी, याद होगा, एक हैविंग क्लास का और ये वेयर क्लास का। तो मैंने आपको ये बताया था कि वेयर क्लास में जो फिल्टर होता है, जो हम फिल्टरिंग करते हैं वो तमाम रिकॉर्ड्स की करते हैं, लेकिन हैविंग में जब हम फिल्टरिंग करते हैं तो वो उस ग्रुप की करते हैं जिस पे हम उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये दोनों में फर्क होता है। ऑल कॉलम नेम इन द सेलेक्ट लिस्ट मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लास। अगर आप ग्रुप बाय क्लास में कोई नाम अपना लिख रहे हैं जी, तो ऑल कॉलम्स नेम इन द सेलेक्ट लिस्ट मस्ट अपीयर इन द ग्रुप। वो ग्रुप में भी आप फिर आपसे लिखेंगे जिस पे आप ग्रुप करना चाहते हैं, अनलेस द नेम इज यूज्ड ओनली इन द एग्रीगेट फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसको यूज नहीं करते लेकिन आपने उसको फिर एग्रीगेट फंक्शन में यूज किया होगा। ये इसकी कंडीशन है और ये आपको करने से समझ आएंगी। मेरा ख्याल पता नहीं आपको इसका कॉन्सेप्ट हो रहा है या नहीं। द कॉन्ट्रेरी इज नॉट ट्रू। अगर हम इससे उलट कहते हैं जिसमें हमने कहा ऑल कॉलम नेम द सेलेक्ट लिस्ट मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लास, ये इससे उलट जो है ना, ऐसा नहीं है। देयर मे बी कॉलम नेम्स इन द ग्रुप बाय क्लास दोज आर नॉट अपीयरिंग इन द सेलेक्ट लिस्ट, ये पॉसिबल है। लेकिन उस तरफ वो जो सेलेक्ट लिस्ट है उसमें वो मस्ट अपीयर होना चाहिए जो हम अपनी ग्रुप क्लास में कर रहे हैं। ये कुछ इसकी हमारी लिमिटेशंस है। इसके बाद बेटे हम ये जो जिसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे आज, तो हम इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, वो है हैविंग क्लास। हैविंग क्लास इज डिजाइन्ड फॉर द यूज विद द ग्रुप बाय क्लास। हम जब भी हैविंग क्लास यूज करेंगे तो इसको किसके साथ अटैच करके यूज करेंगे बेटे? ग्रुप बाय के साथ। टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप्स, हैविंग एंड वेयर सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट पर्पस कैसे सॉल्व करती हैं या कैसे ये ऑपरेट होती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये डिफरेंट इसलिए हैं कि जो वेयर क्लास है उसके साथ जो कंडीशन होती है वो जितने भी आपके उस टेबल के टपल्स हैं वो सब पे ऑपरेट होती है। तो अगर हैविंग क्लास के साथ हमने जो कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है बेटे, वो जो रिस्ट्रिक्शन इसको फिल्टर करेगा वो बेटे इसको कब करेगा? उन ग्रुप पे करेगा जो पहले हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। वो सिर्फ उन्हीं तक उसकी फिल्टरिंग रखता है, ओवरऑल सारे रिकॉर्ड्स को शामिल नहीं करता। ये बात बेटे क्लियर हो रही है? Yes, sir. हाँ, ये अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि वेयर क्लास में और हैविंग क्लास में क्या डिफरेंस है। द कॉलम नेम्स विच आर यूज्ड इन हैविंग क्लास मस्ट आल्सो अपीयर इन द ग्रुप बाय लिस्ट। जो आप हैविंग क्लास में यूज करेंगे वो फिर आपके ग्रुप बाय में भी होने चाहिए, क्योंकि आप बेटे जो कंडीशन लगा रहे हैं वो तो उसी ग्रुप पे लगा रहे हैं। हैविंग के साथ जो भी आप फिल्टर कर रहे हैं बेटे वो किस पे कर रहे हैं? उस ग्रुप पे कर रहे हैं। लिहाजा जो ग्रुप बाय है उसकी जो लिस्ट है उसमें वो चीज़ें हों। हैविंग क्लास मस्ट आल्सो अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लास लिस्ट आर कंटेन्ड विद इन एन एग्रीगेट फंक्शन, या तो उसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन होगा। और हम इसके जो कॉलम नेम्स हैं विच आर यूज्ड इन हैविंग क्लास मस्ट आल्सो अपीयर इन द ग्रुप बाय लिस्ट, जो भी जिस पे भी आपको ग्रुप कर रहे हैं उसमें वो होने चाहिए। The search condition in the having class always include at least one aggregate function। जो आप कंडीशन लगाएंगे उसमें एटलीस्ट कहता है एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर होना चाहिए। क्या वेयर क्लास में ऐसा है बेटे? क्या वेयर क्लास में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप वेयर क्लास यूज करें तो उसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन No, यूज sir. करें? बताएं, कोई बच्चा No, बताए। sir. इसलिए कि आपने पहले ही उसका डिसाइड किया हुआ है। जो आपका रूल है वो ये है कि वेयर क्लास के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज ही नहीं करते। समझ आ रही ना बेटे? तो ये कहता है कि जब भी आप हैविंग क्लास यूज करेंगे तो उसके साथ आप एटलीस्ट एक जो एग्रीगेट फंक्शन है ना उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपने हैविंग के साथ फिल्टर करना है
और वो जो फिल्टर हुए हुए रिकॉर्ड्स हैं उस पे कोई अपने एग्रीगेट फंक्शन जो है ना वो अप्लाई करना है। यहाँ तक अगर इन चीज़ों की नहीं समझ आई तो मुझसे पूछें बेटे। ओके सर सर। अच्छा ऐसे बेटे कि ये जो कॉन्सेप्टली हमें पढ़ा है, मैं इसकी ना यहाँ पे जानबूझ के वो नहीं डाली थी, एग्जाम्पल नहीं डाली थी, तो ये जो है ना काफ़ी लंबा हो जाना था, फिर उसमें ना वो अपना ना हमारे टाइम में ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी थी। तो मैंने इसको इसलिए लिया है कि मैं आज आपके से कॉन्सेप्ट डेवलप करूँ और फिर जुमा के रोज़ इन सब को हम आपसे ही टेबल बनवा के, और ये जो सेलेक्ट कमांड के साथ हमने जितने भी उसके सिंटेक्स पढ़ा है और उसमें जितनी क्लासेस पढ़ी हैं इसको हमने यूटिलाइज करना है। दूसरा हमने ये करना है कि डेलिबरेटली हमने जब अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है तो अपने जो रूल्स हमने पढ़े हैं इसमें जो कंस्ट्रेंट्स पढ़ी हैं हर क्लास की, उसके साथ डेलिबरेटली ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आपका रूल वायलेट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटे? क्या हमने करके देखना है, हमने डेलिबरेटली ये करके देखना है कि हमने उन रूल्स को वायलेट करना है जो हमने पढ़े हैं। मिसाल के तौर पे हम वेयर क्लास के साथ डेलिबरेटली यूज करेंगे अपना ना एग्रीगेट फंक्शन, और हम देखेंगे कि हमें इंटरप्ट क्या आता है। तो ऐसा करने से आप लर्न करते हैं कि जब भी आपको क्वेरीज लिखते हैं अगर उसमें कोई इंटरप्ट आ जाता है आपके लिए, वो कहता है मैं इसको रन नहीं कर सकता, तो फिर आपके नॉलेज में ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने ये सिर्फ इसको स्मूथली ही किया होता है तो फिर उस वक्त थोड़े से आप अपसेट होते हैं कि यार ये क्यों ऐसा हुआ है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो ये रूल्स बने होते हैं और ये जो कंस्ट्रेंट्स दी होती हैं उनको हम डेलिबरेटली वायलेट करते हैं। वायलेट करने के बाद वो जो एरर मैसेजेस हमारे होते हैं उनको हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी हम काम करेंगे इस तरह का एरर मैसेज आ जाएगा तो हमें फिर समझ आ जाएगी कि ये किस वजह से आया है। तो इसमें आपने इन दोनों ही एस्पेक्ट को लेके अपनी जो सेलेक्ट कमांड है उसके साथ जितने भी हमने ये फंक्शंस पढ़े हैं आज, एग्रीगेट फंक्शन, इनको हमने यूज़ करना है। फिर एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज़ करने हैं, उसको जो डिफरेंट क्लासेस हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने क्लासेस पढ़ी हैं उनको भी हमने यूज़ करके देखना है, हैविंग को भी यूज़ करके देखना है, ग्रुप बाई को भी यूज़ करके देखना है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक से ज़्यादा इसकी ऐसी स्टेटमेंट बन जाती हैं और इनकी एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है जिसमें सपोज करो आपने तो वेयर भी यूज़ कर लिया, फिर आपने ग्रुप बाय भी यूज़ कर लिया, फिर आपने हैविंग भी यूज़ कर लिया, और जो वेयर क्लास है उस पर ऐसी कंडीशन यूज़ कर ली जो मल्टीपल कंडीशंस हों, जो और से या एंड से आपस में इंटीग्रेट हुई हों, मिली हुई हों। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपकी कंडीशंस है ना उसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किए, साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर लिए। मेरी बातें बेटे समझ आ रही? फिर हमने उसके सब टोटल के लिए भी देखना है कि अगर हमने इसमें से सब टोटल निकालने हैं तो वो सब टोटल हमारे कैसे निकलेंगे, उनको हमने डिस्प्ले करके देखना है। तो ये एक्सरसाइजेज मैं चाहता हूँ कि आपके पार्ट पे होनी चाहिए ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। सब लोगों के पास बेटे ये SQL सर्वर जो उन्होंने आपको एनवायरनमेंट दिया है ये सब लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ ऐसे, या सिंपल अपनी एनवायरनमेंट इंस्टॉल की हुई है? सर इंस्टॉल किया हुआ है। मतलब जो अपना उन्होंने कहा और हमने वही इंस्टॉल किया हुआ है, या अपना कोई आपने ये SQL का कर लिया हुआ है इंस्टॉल? क्योंकि ये सब में चलता है। उसमें सिर्फ सिंपल बेटे ये चीज़ होती है कि जो आपके डायलैक्ट्स है ना उसमें थोड़ा सा जो है ना वो होती है अपना क्या नाम है ये जो सिंटेक्स होती है उसमें थोड़ी सी चेंज होती है। रिजर्व वर्ड वही है, रिजर्व वर्ड में कोई चेंज नहीं है। तो अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उस दिन वो रन कर रहे थे जो जो उन्होंने अपना एनवायरनमेंट यूज़ की हुई है उसमें जब भी आप किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें ये आखिर में उसका टर्मिनेटर वगैरह नहीं डालते। तो वो जो आपको उन्होंने एनवायरनमेंट दिया उसने उसको सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन जो अगर हम सिंटेक्स के हिसाब से देखें ओरेकल की या SQL की सिंटेक्स तो उसमें ये चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें डायलैक्ट इनके हैं उसमें कुछ चीज़ें और होती हैं जिनको वो ज़्यादा को पावरफुल बना देते हैं। और फॉर एग्जांपल ये आपका जो है अपना SQLite जो है ये आपके एंड्रॉयड वगैरह के लिए है। उसमें उन्होंने कह दिया है कि आप अगर कोई प्राइमरी की रखी हुई है तो आप उसको नल भी रख लें। तो ये मुख्तलिफ डायलैक्ट होते हैं, लेकिन हम जो फंडामेंटल इसकी कंस्ट्रेंट हैं उनको हम बेटे फॉलो करेंगे।
ठीक है बेटे। यस सर। यस अब सर। मैं बेटे इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।